So today our next topic is bricks. We will discuss about bricks, what is bricks, how it is formed, which type of material are used in bricks. Basically, first of all, we will discuss about the objective and outcome of this topic. So this is the objective of bricks: to provide the knowledge about the bricks, to provide the knowledge about the ingredients that are used in construction of bricks. And the outcome should be student will learn about the different types of bricks, their classification and their usage, their durability and their strength. So let's start. Bricks will get basically bricks are formed with clay, digging of clay and then drying in oven. This process is known as the manufacturing process of bricks. So bricks will be characterized with different used. First of all, load bearing wall, non load bearing wall, insulation wall, covering wall. So the selection of bricks based on their using brick shape, standard size. In brick shape, 4 size geometric length 2 into from width and the thickness is 2/3 of width, and the standard size of the brick is 215 into 10 into 102.5 into 65 in mm. It can be made from clay, sand and lime cement mortar. So basically the bricks are made from clay, sand and lime, and also some bricks are made by cement, concrete, like such as concrete blocks. This is also known as the total manufacturing process of the bricks. So what are the basics advantages of bricks? लाइक के ब्रिक्स के फ़ायदे क्या हैं? हम अगर ब्रिक्स अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो उसका क्या क्या हमें फ़ायदा होगा, उसका क्या क्या उसकी वजह से हमें ब्रिक्स यूज़ करने से ये हमारे जो स्ट्रक्चर है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो लेट डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक्स. The first point is bricks will not burn, buckle or melt. Brick will not rot and allow termites to invade. Brick will not rust and corrode. And the brick will not dent. Brick will not fade from the sun, ultraviolet rays. Bricks will not damaged by the high wind, rain or hail. Brick will not require constant maintenance. Brick will not limit your personal expression and brick will not limit your design option. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि जो हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में तो वो मेल्ट नहीं होती है, बर्न नहीं होती है, बकल नहीं होती है. मीन्स कि ना ही वो जलती है या ना ही वो कहीं उसका ब्रिक्स में ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं कि जिससे वो मेल्ट नहीं हो पाती. और फिर उसके बाद कहता है कि इसको रस्ट नहीं लगता है, क्रोजन नहीं लगता है, इसमें डेंट नहीं पड़ते हैं. ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारे कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट करता है. हाई विंड्स, रेन और हेमस्टॉर्म के जैसे कुछ डैमेज नहीं होता है. और ना ही इसके लिए कांस्टेंट मेंटेनेंस हमें चाहिए और ना ही इसमें कोई हमारी ब्रिक्स यूज़ करने से हमें हमारे डिज़ाइन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट bricks are commonly used in our construction line for better design, for better strength and durability. Now we will discuss about clay bricks के bricks बनते कैसे हैं, कौन कौन से इसमें ingredients होते हैं, किन किन composition से ये बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है. अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो ब्रिक्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिलिका होता है 60%, एल्यूमिना होता है 20% और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो 20% होते हैं. जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकते हैं, आयरन ऑक्साइड होते हैं जो कि ब्रिक्स को रेड कलर देने का काम करता है, मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. ये सारे कंपोजिशन जो होते हैं वो किस में काम आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में. फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनका क्या काम रहता है ब्रिक्स में. तो सिलिका जो होता है, सिलिका सबसे पहले जो कि सैंड में पाया जाता है, उसको हम अगर क्ले में ऐड करते हैं तो वो एक सूटेबल पोर्शन बनाता है, ब्रिक को हार्ड करता है और उसको प्रिवेंट करता है रैपिंग से एंड श्रिंकिंग से, और उसको ड्राइंग करने में हमें वो यूज़फुल हमारे लिए होता है. तो इफ़ एडिड टू क्ले इन सूटेबल प्रोपोर्शन मेक्स अ ब्रिक हार्ड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रैपिंग एंड श्रिंकिंग ऑन ड्राइंग.
तो सेकंड पॉइंट हमारा जो एल्यूमिनिया है, एल्यूमिनिया इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी क्ले। ऑन द एडिशन ऑफ वाटर क्ले बिकम प्लास्टिक एंड कैन बी मोल्डेड इनटू शेप। जो एल्यूमिनियम का काम होता है वो ये करता है कि जब हम इसमें पानी की मात्रा को ऐड करते हैं तो उससे जो हम क्ले जो होती है, क्ले में एल्यूमिनियम और पानी का जब मिक्सचर होता है तो उससे जो हम अपनी ब्रिक्स को शेप देते हैं, मोल्ड करते हैं, वो उसमें हमारी हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ लाइम। लाइम इट हेल्प to lower the fusion temperature. It helps silica to fuse at lower temperature and thus help to bind the particle together. It also prevents shrinkage of raw bricks. जो लाइम है, लाइम जो है वो क्या करता है कि टेम्परेचर को फ्यूज़ करता है और उसमें क्या करता है कि जो हमें हेल्प देता है वो पार्टिकल को बाइंड करने में, मतलब जितने भी इसमें कंपोजिशन होते हैं, कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, उनको आपस में उनकी बाइंडिंग करता है। और ये भी हमारे लिए एक हेल्पफुल है जो कि हमें प्रिवेंट करता है श्रिंकेज होने से। श्रिंकेज में लाइक के ब्रिक का सुकड़ जाना या जो कंपोनेंट्स का अलग अलग होना, उसको हम श्रिंकेज देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिका, एल्यूमिनियम और लाइम जो है ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं ब्रिक की फॉर्मेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स, कि एक अच्छी ब्रिक्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है अपीयरेंस एंड कलर, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ड्यूरेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंट, स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अपीयरेंस एंड कलर के बारे में पढ़ते हैं। ए गुड ब्रिक शुड हैव ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप with even surface and sharp corner. It should be free from cracks. It should have a uniform brick red color. और अपीयरेंस और कलर जो है वो ब्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिफ़ाइन करता है कि जो एक अच्छी ब्रिक है वो एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए, उसकी जो सरफेस होने, जो उसकी सरफेसेस हैं वो एकदम शार्प कॉर्नर होने चाहिए और वो एकदम फ्री होनी चाहिए। किससे? जो कि उसके अंदर जो क्रैक्स पड़ते हैं उनसे फ्री होनी चाहिए। और उसका जो एक रेड कलर होता है वो एक यूनिफॉर्म ब्रिक रेड कलर होना चाहिए। ये एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तभी हमारी एक ब्रिक जो है वो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। वो किसकी वजह से? अपीयरेंस और उसकी कलर की वजह से। सेकेंड वन इज़ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। गुड ब्रिक शुड बी हार्ड एंड शुड नॉट बी स्क्रैच्ड by fingernail. Also should give a metallic sound when two bricks are stuck to each other. हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जब होगी, हार्डनेस में उसकी जो हार्डन प्रॉपर्टी को शो करेगा, सॉफ्टनेस जब हम दो ब्रिक्स को आपस में जॉइंट करेंगे या उनको आपस में उनको एक दूसरे पे हिट करेंगे, जो एक उसमें से आवाज़ आनी चाहिए वो एक मेटालिक साउंड की तरह आनी चाहिए, जिसमें ताकि उससे हम ये पता लगा सकें कि हमारी जो ब्रिक्स है, जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है, उसकी जो वो एक हार्डन स्टेट में है और जो वो एक आवाज़ हमें देती है वो आवाज़ भी एक मेटालिक साउंड की तरह है, जो कि दोनों में आपसी टकराव की वजह से आती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। फिर आपका आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना लंबा चल सकती है। ए गुड ब्रिक शुड बी एबल टू विथस्टैंड वेदरिंग एक्शन ऑफ सन, रेन, विंड एट्सेट्रा। एक जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी वो क्या होनी चाहिए? लॉन्ग ड्यूरेशन होनी चाहिए। उससे अगर हम उस पर सन पड़ रही हो, सनलाइट पड़ रही हो, या रेन हो, या विंड हो, या बाकी केमिकल एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उन पे, उनकी वजह से कुछ उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उससे क्या होगी कि उस ब्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी में क्या होगा? इंक्रीज़ होगी और वो लाइफ टाइम तक चलेगी। द फोर्थ वन इज़ फायर रेजिस्टेंस। जो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है वो एक जो टेम्परेचर को रेजिस्ट करती है वो 1500 से लेके या नियर अबाउट 816 से लेके 1500 के बीच में वो एक रेजिस्ट करता है उस फायर के टेम्परेचर को। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ जो है वो मेन फैक्टर प्ले करता है ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने से। A good brick is strong enough to not to break when dropped on other brick from a height of 1.25 meters। कि हम ब्रिक्स की स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं कि उसको 1.25 मीटर की हाइट से एक ब्रिक के दूसरे ऊपर उसको थ्रो करते हैं या ड्रॉप करते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो। उससे क्या होता है, जो ब्रेक नहीं होगी वो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी, वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक्स which is formed by clay and it is also used in our construction। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो कलर देता है वो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, लाइम इसमें बाइंडिंग करता है, और बहुत सारे फैक्टर इसमें ऐसे भी होते हैं कि जिससे क्या होता है कि हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं या इसमें ड्यूरेबिलिटी हो या
फायर रेजिस्टेंट होती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिक्स विच इज यूज्ड इन अवर कंस्ट्रक्शन लाइन इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग।